Hi, good morning everyone. Hope you all are good. This is a maths class students and we are doing chapter number 2, that is subtraction. So yesterday we have done some word problem of subtracting tens and ones and now we will do recapitalization of this topic, right? So the topic is subtracting tens and ones. Now I think you all know that how can we subtract tens and ones together, students. So there is one question of word problem, so let's start this question first. After that we will start a new topic. So the question is Radha had 22 pens. Radha के पास 22 pens थे. So students, the first statement is saying that Radha had 22 pens. कि राधा के पास कितने pens थे? 22 pens. Now she gave 10 pens to her sister. उसने 10 पेन अपनी सिस्टर को दे दिए. इट मीन्स द सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग कि उसने 10 पेन्स अपनी सिस्टर को दे दिए. सो आफ्टर गिविंग 10 पेन्स, हाउ मेनी पेन्स डज शी हैव नाउ? तो हाउ मेनी पेन्स डज शी हैव नाउ? अब इसके पास कितने पेन्स है? इट मीन्स पेन्स आर डिक्रीजिंग. पेन्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं बिकॉज शी हैड 22 एंड From 22 she has given 10 pens to her sister. वो 10 पेन अपनी सिस्टर को दे चुकी है. So how many pens does she have now? अब उसके पास कितने pens है? So students, what you have to do? You will see that which number is greater. So 22 is greater number. You all know. So first of all you will write 22 here. So 22 लिखेंगे हम यहाँ पे बेटा. 2 is your ones and 2 is your tens. After that the second statement is saying that she gave 10 pens to her sister. 10 pens. So 10 हम यहाँ लिखेंगे because 0 is your ones and 1 is your tens, and this is the sign of subtraction. Now we have to subtract 10 from 22. So our second step is what? That we have to solve ones. So students, you all know that whenever we subtract 0 from any number, we always get answer itself. जो भी हमारा नंबर है वही हमारा आंसर आता है. Whenever we subtract 0 from any number. So 2 में से अगर हमने 0 को माइनस किया है तो 2 ही आंसर आएगा. Now come to tens. If I have 2 chocolates, right, and I am eating one, और मैं एक खा रही हूँ, तो खाने के बाद कितनी चॉकलेट्स बची हैं? Only 1 chocolate, so I can write 1. So we can say that out of 22, if I will give 10 books to anyone, तो मेरे पास कितनी बचेंगी? 12 books will left with me. मेरे पास कितनी बचेंगे? सिर्फ 12 books. तो मैं लिख सकती हूँ that she has 12 pens now. अब उसके पास कितनी पेन्स है? 12 पेन्स है, राइट? तो 22 में से अगर 10 पेन या बुक वो किसी को भी देती तो अब उसके पास कितने हैं बेटा? 12 पेन्स. आई थिंक आप सबको समझ में आया. स्टूडेंट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट दैट शी हैड 22 पेन्स. शी गेव 10 पेन्स टू हर सिस्टर. सो आफ्टर गिविंग 10 पेन्स, नाउ शी हैज 12 पेन्स. Now students, I don't think so that you have any problem in word problem of subtracting tens and ones. So now we are going to start a new topic and I am giving you some examples about that topic, students. So students, I think you all are able to see that some boys are here and 3 girls are here, girl A, girl B and girl C. So students, these are some balls. So girl A has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balls. Girl C has 1, 2, 3, 4, 5 balls and there is no ball girl B has. तो girl B के पास कोई भी बॉल नहीं है. So what happened? क्या होता है? क्या हुआ था? One day girl A, B, C were playing together. ये तीनों साथ खेल रही थी, right? Girl A had 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balls. Girl A के पास 7 balls थी. Girl C had 5 balls और गर्ल बी के पास कुछ भी नहीं था, राइट? सो शी वॉज आस्किंग फॉर सम बॉल्स. वो कुछ बॉल्स के लिए उन्हें बोल रही थी कि दैट आई ऑल्सो नीड सम बॉल्स. वो उनसे बॉल मांग रही थी. गर्ल बी ने किससे बॉल मांगी? गर्ल बी वॉज आस्किंग टू गर्ल ए फॉर 8 बॉल्स. उसने बोला कि मुझे 8 बॉल्स चाहिए एंड गर्ल ए हैड ओनली 7 बॉल्स. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला है? One day girl A, B, C were playing together. वो तीनों साथ खेल रही थी and girl A had 7 balls, girl C has 5 balls और girl B के पास एक भी बॉल नहीं थी.
बट शी वॉज आस्किंग फॉर सम बॉल्स टू गर्ल ए, बट जो गर्ल बी थी वो किससे मांग रही थी बॉल्स? गर्ल ए से। और कितनी बॉल्स मांग रही थी? शी वॉज आस्किंग 8 बॉल्स। वो कितनी बॉल्स मांग रही थी? 8 बॉल्स। बट 8 बॉल्स तो ए के पास भी नहीं थी, राइट? समझ रहे हैं आप? बी मांग रही थी 8 बॉल्स, बट ए के पास तो इतनी बॉल्स थी नहीं। गर्ल ए डिडंट हैव 8 बॉल्स, उसके पास कितनी थी? शी हैड ओनली 7 बॉल्स, उसके पास सिर्फ 7 बॉल्स थी। बट गर्ल बी वॉज बेस्ट फ्रेंड ऑफ गर्ल ए, जो गर्ल बी थी वो ए की बेस्ट फ्रेंड थी। सो शी थॉट दैट आई हैव टू गिव 8 बॉल्स टू माई बेस्ट फ्रेंड। उसने सोचा कि मुझे तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को 8 बॉल्स देनी ही पड़ेगी। सो वट शी हैज डन, उसने क्या किया? वट शी डिड, उसने क्या किया था? शी बोरो 1 बॉल फ्रॉम गर्ल सी। उसने एक बॉल उधार ले ली या बोरो कर ली अपनी फ्रेंड से, जो कि कौन थी? गर्ल सी। जो गर्ल बी थी वो गर्ल ए की बेस्ट फ्रेंड थी, एंड शी वॉज आस्किंग फॉर 8 बॉल्स, बट गर्ल ए डिडंट हैव 8 बॉल्स, उसके पास 8 बॉल नहीं थी। सो व्हाट शी डिड, शी बोरोड 1 बॉल फ्रॉम गर्ल सी। उसने गर्ल सी से, सी वाली जो गर्ल है उससे 1 बॉल क्या कर ली? बोरो कर ली, उससे उधार ले ली स्टूडेंट्स, राइट? इफ आई हैव 7 पेन्स, अगर मेरे पास 7 पेन है एंड माई फ्रेंड इज आस्किंग फॉर 8 पेन्स, और मुझे लगता है कि दैट आई शुड गिव बिकॉज शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, सो मैं क्या करूंगी? आई विल बोरो 1 पेन टू फ्रॉम एनी वन। मैं किसी से भी 1 पेन उधार ही ले लूंगी, राइट? सो सेम ही कौन कर रहा है? गर्ल ए कर रही है गर्ल बी के लिए, बिकॉज गर्ल बी इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ गर्ल ए। सो व्हाट शी इज डूइंग, वो क्या कर रही है? उसने क्या किया था? शी बोरोड 1 बॉल फ्रॉम गर्ल सी। तो उसने मांगी 8 बॉल, इसके पास थी 7 बॉल, इससे इसने अगर 1 बॉल बोरो कर ली, इट मीन इससे उधार ले ली। क्या कर रही है? बोरो कर रही है। तो 7 बॉल्स तो इसकी हो गई हमारे पास, एक हमने यहां से बोरो कर ली, टोटल इसके पास कितनी होगी? नाउ शी हैज 8 बॉल्स। 7 तो इसके पास थी, 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स, राइट? 8 किससे ले ली? 6 से। 6 से अगर 1 बॉल उसने ले ली तो गर्ल बी के पास 8 बॉल्स होगी। आफ्टर गिविंग 1 बॉल टू गर्ल बी, हाउ मेनी बॉल्स डज शी हैव नाउ? अब उसके पास कितनी बची है? ओनली 4 बॉल्स, राइट स्टूडेंट्स? मैंने क्या समझाया है? गर्ल ए हैड 7 बॉल्स, गर्ल बी वॉज बेस्ट फ्रेंड ऑफ गर्ल ए एंड शी वॉज आस्किंग फॉर 8 बॉल्स, एंड गर्ल ए वॉन्टेड टू गिव 8 बॉल्स टू गर्ल बी। जो गर्ल ए थी वो बी को देना चाहती थी 8 बॉल्स, तो उसने क्या किया? गर्ल सी से 1 बॉल को बोरो करके गर्ल बी को 8 बॉल्स दे दी। तो गर्ल सी से तब उसने बोरो की, सो हाउ मेनी बॉल्स आर लेफ्ट विद गर्ल सी नाउ? 4। 1 देने के पास उसके पास कितनी बच गई बेटा? 4। सो स्टूडेंट्स बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर डूइंग बोरो। हम क्या कर रही है? बोरो कर रहे हैं। अगर हमारे पास किसी चीज की कमी है तो बोरो कर रहे हैं, राइट? हमने यहां से बोरो किया और हमने उसको दे दिया, बिकॉज शी नीडेड हाउ मेनी बॉल्स? 8 बॉल्स, क्योंकि उसको जरूरत थी 8 बॉल्स की, तो हमने क्या किया? यहां से बोरो किया और हमने उसको दे दिया। इट मीन्स व्हाट वी हैव डन, वी हैव डन कैरी लिया हमने इसे कैरी किया और हमने उसको दे दिया, राइट स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारे पास इतना था ही नहीं कि हम उसमें से उसको दे देते, तो हमने क्या किया? हमने यहां से बोरो किया और हमने उसको दे दिया, राइट? So students, I think you all have understood that example that basically we are taking borrow. हम बोरो ले रहे हैं, वी आर डूइंग बोरो, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं? बोरो कर रहे हैं। जो चीज हमारे पास नहीं है वो हम किसी से ले रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन दैट। तो अभी मैं आपको समझाती हूँ कि हम कैसे करेंगे, राइट? सो सब्ट्रैक्ट 36 फ्रॉम 53. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन दिस ऑल्सो इन द प्रीवियस क्लास। 36 फ्रॉम 53। अब हमें 36 को 53 में से माइनस करना है। याद रखिएगा, अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया था? दैट यू शुड राइट। आपको क्या लिखना चाहिए? बड़ा नंबर ऊपर लिखना चाहिए, छोटा नंबर नीचे लिखना चाहिए, राइट? बट अब हम पढ़ेंगे दैट हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट बिगर नंबर फ्रॉम स्मॉलर नंबर, कि हम बड़े नंबर में से, हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को कैसे माइनस कर सकते हैं। फॉर दैट वी हैव टू टेक बोरो फ्रॉम आवर नेबर। हमारा पड़ोसी, हमारा फ्रेंड या जो भी हमारे पास है, हमें उससे क्या लेना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा। हमें चीजों को बोरो करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, राइट? सो सब्ट्रैक्ट 36 फ्रॉम 53।
हमें क्या करना है, 36 को 53 में से माइनस करना है। नाउ वी हैव टू सी कि अब हमें देखना है कि फ्रॉम का मतलब क्या है, कि इस नंबर को इस नंबर से माइनस करना है। क्या करना है हमें, इस नंबर को इस नंबर में से माइनस करना है। इस नंबर को पहले लिखेंगे, राइट, क्योंकि हमें पता है जो फ्रॉम के बाद वाला, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है वो ऊपर आएगा, फ्रॉम से पहले वाला जो नंबर आएगा वो नीचे आएगा। ध्यान से समझिएगा। अभी तक हमने देखा था दैट वी हैव टू पुट बिगर नंबर फर्स्ट, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना तब भी हम फ्रॉम के क्वेश्चन करते हैं, वी हैव टू सी दैट जो भी फ्रॉम के बाद वाला नंबर है वो हम ऊपर लिखेंगे, फ्रॉम के से पहले वाला नंबर हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि हमें बोला गया कि 36 को माइनस करना है 53 में से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 53। सो 3 is ones and 5 is tens। नाउ अब हमें 36 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 is ones and 3 is tens। Now students, a second step will be that we will subtract ones first. Now you have to see that you have 3 pens. You have 3 pens and you have 3 pens and your father is asking for 6 pen. आपके पास सिर्फ 3 पेन्स हैं और आपके पापा को 6 पेन्स की नीड है। आपके पास तो सिर्फ 3 पेन है एंड योर फादर इज आस्किंग फॉर 6 पेन। आपके पापा 6 पेन मांग रहे हैं। सो हाउ कैन यू गिव, आप कैसे दे सकते हो? यू हैव टू बोरो। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बोरो करना पड़ेगा। एंड आप किससे बोरो करोगे? फ्रॉम योर नेबर। एंड हु इज योर नेबर? योर नेबर इज टेंस। आपका नेबर कौन है? टेंस है आपका नेबर, राइट? आपका नेबर है टेंस। सो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम बोरो करेंगे कैसे? जो टेंस की ऊपर वाली डिजिट है, राइट? जो टेंस की ऊपर वाली डिजिट है उससे आप 1 बोरो करेंगे। अब 1 बोरो करके हम सॉल्व कैसे करेंगे, राइट? अब 3 में से तो हम 6 माइनस कर नहीं सकते बिकॉज 3 इज स्मॉलर नंबर एंड वी नीड बिगर नंबर टू सब्ट्रैक्ट, राइट? सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक बोरो फ्रॉम दिस नंबर। दिस इज 5। ये क्या है बेटा? 5। सो मेक 5 लाइन्स है, 1 2 3 4 5 एंड दिस 3 नीड्स 1 बोरो। अब इस 3 को क्या चाहिए? 1 बोरो चाहिए। अगर मैं 1 बोरो लेकर यहां रख दूं, राइट? याद रखिएगा जब हम टेंस से बोरो ले रहे हैं तो जितना भी बोरो हम लेंगे, 1 ले, 2 ले, 3 ले, वो हमेशा हमें टेंस प्लेस पर ही रखना है। आपका जो 3 है वो एज इट इज रहेगा। हाउ? देखिए, अब हमें 1 बोरो लेना है। अब हमने वंस की तरफ 1 बोरो ले लिया। अगर हमने 1 बोरो ले लिया, राइट, समझिएगा, अगर हमने 1 बोरो ले लिया तो 1 तो यहां से कम हो गया बेटा। अगर 4 पेन्स में से मैंने 1 पेन वंस को दे दिया, आई हैव 5 पेन्स एंड आई एम गिविंग 1 पेन टू वंस। और अगर मैं वंस को ये 1 पेन दे रही हूं तो इसके पास कितने पेन्स बच गए बेटा? 4 इंस्टेड ऑफ 5 की जगह इसके पास कितने पेन्स बच गए? 4 पेन्स बच गए। ध्यान से समझिएगा, 5 में से अगर 1 उसने बोरो कर दिया, उसको दे दिया, तो नाउ दे हैव ओनली 4 पेन्स, राइट? अभी 5 को भूल जाइए। अब देखिए, 1 तो इसने बोरो कर दिया, अब 3 तो इसके पास ऑलरेडी था, राइट? तो अब हमने क्या करना है? 1 जो है वो हमारा टेंस डिजिट पे रहेगा क्योंकि हमने टेंस से बोरो किया है। 1 का मतलब क्या है? 1 टेंस का मतलब क्या है? 10। 1 टेंस का मतलब क्या है? 10। और 10 और ये क्या है? ये तो वंस डिजिट है, तो वंस डिजिट को हम एज इट इज लिख देंगे। इट मीन्स क्या हुआ है? 1 टेंस प्लस 3 वंस क्या हुआ? 13। 1 टेंस का मतलब ही क्या है कि ये क्या है? 10 है, राइट? 1 टेंस का मतलब क्या है? ये 10 है। और 10 में अगर हमने इस 3 को ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया बेटा? 13। नाउ स्टूडेंट्स, भूल जाओ कि आपके पास 3 था क्योंकि आपने तो बोरो कर लिया। आपने यहां से 110 बोरो कर लिया। 110 बोरो करने का मतलब है दैट यू हैव बोरोड 10 पेन्स। आपके पास 3 पेन्स थे, 10 यू हैव बोरोड, नाउ यू हैव 13 पेन्स। सो नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 6 पेन्स फ्रॉम दीज 13 पेन्स, स्टूडेंट्स, राइट? So you all can subtract now, make 13 lines here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Now you have to give 6 pence to your father. दे दीजिए 1 2 3 4 5 6. So after giving 6, how many you have now? 1 2 3 4 5 6 7. कितना बचा? 7. Again I am repeating, students, 3 smaller numbers, so we cannot
subtract 6 from 6. So what we have to do, we will take carry from tens. Tens is our neighbor. Tens कौन है? हमारा नेबर है, तो हमने इससे क्या लिया? एक कैरी लिया. अब टेंस से अगर हम कैरी ले रहे हैं तो टेंस प्लेस पे ही हम रखेंगे, और जिसको हमने ऐड करना है वो हमारा वंस है, तो वंस को हमने वंस प्लेस पे रखा, टेंस से कैरी लिया, तो ये क्या बन गया? 13. भूल जाओ कि हमारे पास 3 था, क्योंकि हमने क्या लिया है? बोरो किया है, कैरी लिया है हमने, राइट. सो 3 को भूल जाइए. अब आपको जो आपका न्यू नंबर जनरेट हुआ है उसमें से आपको 6 को माइनस करना है स्टूडेंट्स, राइट. सो वी हैव डन वंस. नाउ वी विल कम टू टेंस. सो व्हाट वी हैव डन हियर, हमने यहाँ क्या किया था? हम यहाँ क्या कर चुके हैं स्टूडेंट्स? वी हैड 5 पेन्स. हमारे पास 5 पेन्स थे, जिसमें से 5 टेंस का मतलब है 50. 5 टेंस का मतलब 50, जिसमें से हम एक वहां पे बोरो कर चुके हैं, हमने उसको दे दिया है. तो हमारे पास कितने बचे थे? 4. भूल जाओ ये हमारे पास था. बोरो करने के बाद वी विल नॉट सी दिस डिजिट. बोरो करने के बाद, बोरो उसको देने के बाद हम इसको नहीं देखेंगे. हमें क्या देखना है? जो हमारा न्यू नंबर है, राइट. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4. अब हम 3 को इस 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स. सो 1 2 3 4. 4 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो हाउ मेनी वी हैव? नाउ ओनली 1. So students, we can say that if we will subtract 36 from 53, we will get 17. So students, whenever we have to subtract bigger number from smaller number, we have to take carry or we have to borrow any number from our neighbor. हमें अपने नेबर से कोई भी नंबर या फिर हमें कैरी लेनी पड़ेगी, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू सब्ट्रैक्ट एनी बिगर नंबर फ्रॉम स्मॉलर नंबर. आई थिंक आप सबको समझ में आया. अगेन आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन. मैं दोबारा रिपीट करूंगी और मैं कर रही हूँ. स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द क्वेश्चन? दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 36 फ्रॉम 53. हमेशा ध्यान रखिएगा, व्हेनेवर यू विल फाइंड फ्रॉम इन द क्वेश्चन. फ्रॉम अगर कभी भी आपको मिलता है, क्वेश्चन में मिलेगा, आपको क्या देखना है? फ्रॉम के बाद वाला नंबर ऊपर लिखिए, फ्रॉम से पहले वाला नीचे रखिए. ठीक है स्टूडेंट्स. अब आपको देखना है कि 3 में से 6 तो माइनस हो ही नहीं सकता, तो आप क्या लोगे? कैरी लोगे. कैरी लोगे तो आप 10 से कैरी ले रहे हो, तो उसको 10 डिजिट पे रखो, वंस का वंस पे रखो. आपको पता ही कि 1 टेंस का मतलब क्या है? 10. तो 1 और 3 मिलके क्या बन गया? 13. सो नाउ यू हैव 13 पेन्स एंड फ्रॉम 13 पेन्स यू आर गिविंग 6 पेन्स टू योर फादर. तो आपके पास 7 बच गया. आफ्टर गिविंग द बोरो देने के बाद, आफ्टर गिविंग द बोरो यू हैव 4 पेन्स. 5 भूल जाओ, क्योंकि 5 में से आप एक दे चुके हो, राइट. सो नाउ यू विल टेक दिस नंबर इंस्टेड ऑफ दिस नंबर. जो नया नंबर आपके पास है उसको आप देखोगे, ना कि पुराने नंबर को देखोगे. सो यू विल सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4. अगर आप 3 को 4 में से माइनस करते हो तो आपके पास क्या आता है? 17. सो यू कैन राइट कि अगर हम 53 में से 36 माइनस करते हैं तो वी विल गेट 17 स्टूडेंट्स, राइट. सो दिस इज कॉल्ड कैरी सम्स. हम इनको क्या बोलते हैं? कैरी सम्स बोलते हैं. Now come to next example. Subtract 32 from 51. Now you all know that जो भी from के बाद डिजिट है you will write first, उसके बाद आप second digit लिखोगे. So we will write first 51. So student, 1 is your ones, 5 is your tens. Now 32, 2 is your ones and 3 is your tens. And this is the sign of subtraction. Now students, these 2 circles are for carry. जो भी हम carry लेंगे उसके लिए 2 circles हैं. So now what we have to do, you will solve ones first. Now you have to subtract 2 from 1 and we all know that 1 is a smaller number, so we are not able to subtract bigger number from smaller number. So for this what we have to do, we will take carry from our neighbor. And who is our neighbor? Tens is our neighbor. So we have to take carry from tens now. So students, you know that 1 is a smaller number, तो 1 को हम ones पे रख देंगे, right. अब हमें क्या करना है? We will take carry from tens. टेंस में से अगर हम 5 में से कैरी लेते हैं, नीचे वाले से कैरी कभी नहीं लेते हैं, ऊपर से ही कैरी लेंगे स्टूडेंट्स. सो 5 है आपके पास, ठीक है. सो 1 2 3 4 5, राइट. 5 में से अगर मैंने वहां 1 कैरी ले ली स्टूडेंट्स, 1 को कैरी लेके हमने वंस पे रख दिया, टेंस पे रख दिया, राइट. सो हाउ मेनी वी हैव नाउ? 1 2 3 4. कितना बचा है? 4 स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, वी कैन कट दिस. हम इसको काट सकते हैं कि इसको काटने के बाद हमारे पास कितना बचा है? 4 बचा है. इट मीन्स नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस एंड दिस, राइट. एंड इसको काटने के बाद हमारे पास कितना आ गया? 11. ये मैंने क्यों काटा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज वी हैड 1. हमारे पास 1 था, बट वी आर नॉट एबल टू गिव 1
ठीक है, हम एक और ज्यादा नहीं दे सकते, बट वी आर नॉट एबल टू गिव 2 पेन्स टू एनीवन। अगर इसने 2 मांगा, इसके पास 1 है और ये 2 मांग रहा है नीचे वाला, तो हम कैसे देंगे? हमें तो कैरी लेनी पड़ेगी, राइट? सो वी आर बेसिकली टेकिंग कैरी। तो हमने क्या किया, 10 से हमने एक कैरी ले लिया। तो आपको पता है कि अगर मैंने 1 यहाँ पे 10 यहाँ पे कैरी लिया है, तो 1 10 का मतलब क्या है कि मैंने 10 कैरी लिया है। 10 में 1 को ऐड करेंगे तो 11 बन गया। तो अब इससे तो हमें सॉल्व करना है नहीं, तो इसे काट दीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। Here also we have done this कि क्या किया हमने 5 में से 1 कैरी दे दिया है, राइट? नाउ वी हैव ओनली 4। इसको काट दीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यू विल सॉल्व 11 2, यू विल सॉल्व 4 and 3। नाउ आप 11 में से 2 को बहुत इजीली माइनस कर सकते हो, बिकॉज 11 इज अ बिगर नंबर नाउ, राइट स्टूडेंट्स? सो 11 लाइन्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एंड नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 from 11, 1 and 2. So how many lines we have now? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So students, we can say that if we subtract 2 from 11, so we will get 9. Now come to tens. Now 4 minus 3. Now we have to see 4 instead of 5 because we have cut this, right? क्योंकि हमने बोरो लिया था तो हमने इसको काट दिया कि एक देने के बाद तो 4 ही बचे। Now 4 minus 3 is, everyone knows, 1. 4 में से अगर 3 देते हैं तो कितना बचता है? 19. So we can say that 51 minus 32 equals to 90, right? So students, basically today we have learned how can we borrow, how can we take carry, हम कैसे borrow कर सकते हैं, हम कैसे carry ले सकते हैं, how can we subtract bigger number from smaller number, हम बड़े नंबर को smaller number से कैसे subtract कर सकते हैं, बेसिकली आज हमने वो पढ़ा है। So that's it for today, see you in the next class.